वेरी बिगनिंग में इंटरनेट का क्या नाम था? आरपानेट। ARPANET, yes sir. हाँ, वेरी बिगनिंग में इंटरनेट का नाम क्या था? आरपानेट। मतलब कि इंटरनेट का शुरुआत यूएस डीओडी जो था, यूनाइटेड स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, उसने एक प्रोजेक्ट के तहत इंटरनेट का शुरुआत किया था और उस प्रोजेक्ट का नाम था आरपा। क्या था? ARPA, ARPA, Advanced आरपा, Research Project Agency. एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। यानी इंटरनेट का वेरी बिगनिंग में नाम क्या था? आरपानेट। क्या था? ARPANET. आरपा, ठीक है। और इसके बारे में कुछ कंटेंट्स भी लिखवाए थे ना आप लोग को? No sir, अभी कुछ नहीं लिखा है. इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं लिखवाए हैं? इंटरनेट लिखवा दे सर, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट नहीं लिखवा है. हाँ तो लिख लो, हेडिंग दे दो हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। म्यूट रखो जी। हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। Yes sir, बोलिए. इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ था? 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969. 1969 लिखे। द रूट्स ऑफ द इंटरनेट, द रूट्स ऑफ द इंटरनेट, the roots of the internet can be traced, can be traced, the roots of the internet can be traced, can be traced to the year, the root of the internet can be traced, can be traced to the year 1969, the roots of the internet can be traced to the year 1969। सर शुरू से बोल रहे हैं क्या सर? हाँ हाँ, the roots of the internet can be traced, the roots of the internet can be traced to the year 1969। सर ट्रेस्ड का स्पेलिंग? TRACED can be traced to the year 1969, to the year 1969, when the advanced research, when the advanced research project agency, when the advanced research project agency, when the advanced research project agency, ब्रैकेट में कर लीजिएगा आरपा, when the advanced research project agency, ब्रैकेट में कर लीजिएगा आरपा, ARPA, ब्रैकेट बंद, ARPA of the US government, of the US government, of the US government, of the US government formed the very first network, formed the very first network, formed the very first network, very first network, which was widely known as, which was widely known as, very vast network. which was widely known as, which was widely known as, which was widely known as, government formed the very first network which was widely known as, which was widely known as the advanced research, the advanced research project agency, advanced research project agency network,
Advanced Research Project Agency Network, which was widely known as widely known as Advanced Research Project Agency Network. ARPA ब्रैकेट, network. हाँ ब्रैकेट में लिख लो आरपा नेट, ब्रैकेट में लिख लीजिए आरपा नेट, आरपा नेट, which was widely known as आरपा नेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आरपा नेट। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए इसमें, दिस नेटवर्क was, this network was initially created, this network was initially created this network was initially created, this network was initially created to interconnect, this network was initially connected to interconnect computers, this network was initially created to interconnect computers, this network was initially created to interconnect computers so that users in, so that users in research organization, so that के बाद सर so that users in, so that users in research organization, so that users in research organization and universities, so that users in research organization and universities could communicate with, could communicate with each other, could communicate with each other and share information, could communicate with each other and share information। देखो वेरी बिगनिंग में जो इंटरनेट बनाया गया था ना, वो बनाया गया था यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन के लिए, और यूएस यूनाइटेड स्टेट जो था अपने डिफेंस के लिए, और क्या बोलते हैं, एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी से कैसे कम्युनिकेट करेगा उसके लिए बनाया गया था। ठीक है, बात समझ गए? Yes sir. ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए सर। हाँ हाँ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। ओके सर। एक मिनट, हाँ सुनिए। हाँ तो बाद में क्या हुआ सुनो, वेरी बिग, ये इंटरनेट का इजाद कहाँ से हुआ था? इंटरनेट का इजाद तायरा रुखसार, USA। हाँ सर यूएस, यूएस से हुआ।
यूनाइटेड स्टेट का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था उसने किया था, Yes. और वो US अपने, government. हाँ, अपने आर्मी के लिए किया था। बाद में सुनो 1989 में यूएस गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन हटा दिया इस पे, ठीक है। Sir, क्या चीज सर? रिस्ट्रिक्शन जो था पहले यूनिवर्सिटी लोग करेगा, उसका आर्मी लोग करेगा, तो बाद में रिस्ट्रिक्शन क्या, आवाज नहीं आ रही सर। बाद में रिस्ट्रिक्शन क्या किया, लिख लीजिए, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए, और कैमरा ऑन रखो, केवल एक ही का, ताहिरा का कैमरा ऑन है, बाकी सब ऑफ किए हुए हैं। क्या बात है, ऑन करिए, लिखिए। इट वाज इन 1989, it was in 1989 that the US government, it was in 1989 that the US government, it was in 1989 that the US government lifted restriction, government lifted restriction on the use of the internet, Listed lifted restriction on the use of the internet, and allowed it to be used for commercial purpose. क्या सर? Allowed it to be used for commercial purpose. Allowed it to be used for commercial purpose. Commercial purpose. कॉमर्शियल पर्पस के लिए किया गया, ठीक है। 1918 रिस्ट्रिक्शन कब हटाया यूएस गवर्नमेंट ने? 1989. 1918 चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। तो सर्विसेज, हाँ सर इंटरनेट का इन्वेंशन कौन किया था सर? अभी तो बताए जी। सर ये तो US आप बता, government. सर आप ये बताए कि इसका ट्रेसेस मिला था हम लोग को यूएस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, बट तो इसका इन्वेंशन कौन किया था? ये किया था तुम्हारा, क्या बोलते हैं, आर्मी, यूएस का जो आर्मी था ना। हेलो सर आर्मी तो था सर, पर वो आदमी कौन था जो इंटरनेट का सबसे पहले डेवलप किया था? अब वो आदमी नहीं है, ऐसा पढ़ा जाता है कि यूएस डीओडी के द्वारा ही किया गया था। ऐसे देखना तुम लोग गूगल पे सर्च करके, ठीक है। Okay sir. हाँ, अब हम लोग देखते हैं सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। सर्विसेज ऑफ इंटरनेट में पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है जी, कौन बताएंगे? ईमेल सर। अरे ईमेल तो हम भी जान रहे हैं, ईमेल क्या सर है? इंटरनेट, सर Sir, इंटरनेट के mail थ्रू, to mail share, link share करने के लिए. सर देखो बता इंटरनेट रहे के थ्रू मैसेज को शेयर करने के सुनो, लिए। समझो ध्यान से। ईमेल जो जैसे जैसे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट हुआ, 4th जनरेशन का कंप्यूटर आया, टेलीकम्युनिकेशन में इन्हांसमेंट आया, तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन का इजाद हुआ। आप लोग को बताए थे ना डेटा कम्युनिकेशन में। Yes sir. देखो इलेक्ट्रॉनिक मेल कोई नया चीज नहीं है, प्राचीन का। ये पोस्टल मेल जो पहले यूज होता था, डाकिया, अरे डाकिया वाला जो Postman होता, sir. हाँ पोस्टमैन, अभी भी Yes, यूज sir. होता था।
उसी का एडवांस फॉर्म है, उसी का एडवांस्ड फॉर्म है। एक कम्युनिकेशन प्राचीन काल से आ रहा है। पहले क्या राजा महाराजा लोग का क्या रहता था? पोस्टमैन, पत्रवाहक। पत्रवाहक सर। हाँ, और उससे पहले घोड़ा ले जाता था, कुत्ता ले जाता था, कबूतर। यस सर, कबूतर। वो कौन सा पिक्चर है जिसमें गाना है कबूतर जा कबूतर जा? सलमान खान का है सर। हाँ, कौन सा फिल्म है? हम आपके हैं कौन? हाँ, हम आपके हैं सर- कौन। तो वहां सर, पे वो कबूतर जो था वो कम्युनिकेशन सिस्टम था। क्या था? कम्युनिकेशन सिस्टम, कबूतर। सेंडर और मीडियम दोनों का काम करता था, मीडियम का काम करता था। किसका? यस सर, मीडियम का काम करता था। आप लोग को बताया है ना बेसिक एलिमेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में, सेंडर, रिसीवर एंड मीडियम। यस सर। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल आपका इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइडेड एक सर्विसेज है जिसमें मैसेजेज को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करते हैं, मैसेजेज को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करते हैं। फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। अब ईमेल के लिए कुछ प्रोटोकॉल यूज होते हैं। ईमेल के लिए कुछ प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जैसे एक होता है SMTP। क्या होता है? SMTP। इसको बोलते हैं सिंपल, लिख लीजिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अरे कोई मेल को हम लोग सेंड करते हैं ना, Yes, sir. मेल को सेंड करते हैं, तो वहां पे रोल होता है किसका? SMTP का। किसका होता है? SMTP का। SMTP. मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जब मेल सेंड किया जाता है तो मेल टेम्पोररी एक जगह पे स्टोर्ड होता है, मेल टेम्पोररी एक जगह पे स्टोर्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं POP। क्या बोलते हैं? POP. POP। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। Post office protocol. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP का काम होता है मैसेज को टेम्पोररली क्या करना? होल्ड Store करना। करना। हाँ, मैसेज को टेम्पोररली स्टोर करने का काम किसका होता है? हॉप का। POP का, POP प्रोटोकॉल POP का, का. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। ठीक है, अब देखो मेल करते हैं हम लोग, मेल के लिए क्या होता है? आपका अकाउंट होना चाहिए, यूजर अकाउंट होना चाहिए, होना चाहिए ना जी। Yes, sir. यस सर। और उसका Yes, एड्रेस फॉर्मेट क्या होता है? यूजर नेम @ gmail.com। yahoo.com। सुनो, होस्ट नेम .domain। जैसे जीमेल क्या हुआ? जीमेल भी। होस्ट नेम, जीमेल, याहू, रेडिफ, ये सब क्या हुआ? होस्ट नेम। होस्ट नेम हुआ। तो अब देखो ईमेल के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? ईमेल अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीमेल अकाउंट। जीमेल नहीं, कोई भी अकाउंट, ईमेल अकाउंट हम बोल रहे हैं, नॉट जीमेल। ओके सर, ईमेल ईमेल अकाउंट। अकाउंट। हाँ, अब ईमेल में तुम क्या करते हो? पहला टू फील्ड होता है। टू फील्ड में क्या करते हैं हम लोग? Subject and compose. बिल्कुल। इन दिस फील्ड द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट शुड बी टाइप्ड। जिसको भेजना है ईमेल, उसका ईमेल टाइप करते हैं। जिसको मेल भेजना है उसका ईमेल टाइप। ईमेल टाइप करते हैं। ईमेल टाइप करते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में किस पर्पस के लिए भेज रहे हैं? जैसे तुम लोग चिट्ठी लिखते हो ना, यस सर। Yes, sir. PDF शेयर करते हैं। उसमें विषय लिखते हो ना जी, विषय। यस सर, यस सर। सब्जेक्ट। हाँ, और उसके बाद होता है बॉडी। बॉडी Yes, sir. मतलब कंटेंट ऑफ द मैसेज।
Yes, sir. कोई पीडीएफ भी भेजना है, जैसे फोटो वगैरह भेजना है, मार्कशीट भेजना है, तो उसके लिए अटैचमेंट करते हैं। क्या करते हैं? Attach करते हैं सर फाइल। Attachment. अटैचमेंट। अच्छा ताहिरा, एक बताइए सीसी और बीसीसी में क्या अंतर है? सर क्या सर? सीसी एंड बीसीसी में क्या डिफरेंस है? CP and BCC। कार्बन कॉपी एंड ब्लैक कार्बन कॉपी। सर कार्बन कौन बताएगा जी? BCC सर ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी होगा, कार्बन नहीं, कॉपी। समझो ध्यान से। जैसे एक मेल भेज रहे हैं हम, वो ताहिरा को भी भेज रहे हैं, नित्यानंद को भी भेज रहे हैं, तरन्नुम को भी भेज रहे हैं। तो सीसी में यदि ये एड्रेस देंगे तो तुमको पता चल जाएगा कि सर किसको किसको मेल भेजे हैं। हमको तुमको जनाना, हमको तुमको नहीं मालूम चले कि और किसको भेज रहे हैं, तो उस केस में बीसीसी में डालेंगे। किसमें? BCC। हाँ बीसीसी, ब्लैक कार्बन कॉपी। ठीक है, ये सब लिखवाना पड़ेगा तुम लोग को कि लिख लोगी? सर लिखवा दीजिए। सर ब्लैक कार्बन कॉपी से क्या होता लिखवा दीजिए सर, लिखवा दीजिए। ब्लैक कार्बन कॉपी नहीं बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अभी है? क्या होता है सर? अभी क्या बताए, कोई ईमेल हम भेज रहे हैं ताहिरा को, तरन्नुम को और नित्यानंद को, ठीक है, तो आपस में तुम लोग को पता चल जाएगा कि इसी मेल को सर नित्यानंद को भी भेजे हैं, तरन्नुम को भी भेजे हैं, ताहिरा को पता चल जाएगा। हम चाहते हैं ताहिरा को नहीं पता चले, हमको चाहते हैं तो उस वैसे केस में नित्यानंद का एड्रेस हम किसमें डालेंगे? बीसीसी में। बीसीसी में। किसमें डालेंगे? बीसीसी। BCC में। तो पहला लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट सर्विसेज में इलेक्ट्रॉनिक मेल लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल is a means of, is a means of, is a means of transmission of messages, is a means of transmission of messages, transmission of messages electronically, transmission of messages electronically, transmission of messages electronically, electronically over communication network, ठीक है, ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क, फुल स्टॉप। ईमेल इज वन ऑफ द, email is one of the most widely used, email is the most widely used services, email is one of the most widely used services on the internet, ईमेल एक तरीके का सर्विस है जो इंटरनेट पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगला सर्विस देखते हैं हम लोग। अगला सर्विस है आपका जो इंटरनेट का, वो आपका है एफटीपी। क्या है? एफटीपी। एफटीपी इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दो मोड में काम करता है, एक को बोलते हैं अपलोड और दूसरे को बोलते हैं हम लोग डाउनलोड। डाउनलोड, डाउनलोड मतलब एफटीपी वर्क्स ऑन टू मोड, अपलोड और पुट मोड एंड डाउनलोड और गेट मोड। ठीक है, अपलोड पहले समझो। अपलोड मीन्स लोकल होस्ट से रिमोट होस्ट पे कुछ भेजने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? अपलोड। अपलोड। और रिमोट होस्ट से लोकल होस्ट पे कॉपी करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाउनलोड।
क्या बोलते हैं? डाउनलोड। और सुनो, एफटीपी आपका लेयर पढ़ा है ना जी, लेयर। यस सर। Yes, sir. तो ऊपर से टॉप 2 लेयर पे काम करता है एफटीपी, एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर पे। किस पे? एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर। और एफटीपी का एफटीपी आपका, यदि फाइल का साइज क्या है, बड़ा है, फाइल का साइज बड़ा है। तो एफटीपी उसको कॉम्प्रेस भी कर देता है। क्या करता है? कंप्रेस कर देता है। हाँ, कॉम्प्रेस भी कर देता है। ठीक है, तो लिख लो थोड़ा, सेकंड सर्विस लिख लीजिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिख लीजिए इसके बारे में। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल is one of the file transfer protocol is one of the oldest application is one of the oldest application of the internet, one of the oldest application of the internet. File transfer protocol is one of the oldest application of the internet, which is basically used for which is basically used for transferring files, which is basically used for transferring files from one computer, transferring files from one computer to another, such as from a user's personal computer, user's personal computer to a web server, such as from user's personal computer to a web server, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। It is usually used to number one, enable the users to share files, comma, computer program or data, computer program or data. Second point, enhance the use of remote computer,
enhance the use of remote computer. सर रिमोट कंप्यूटर मतलब? रिमोट कंप्यूटर मतलब आपसे दूर के लोकेशन पे जो रखा हुआ कंप्यूटर। थर्ड पॉइंट, provide authentication, provide authentication and security, provide authentication and security, provide authentication and security to the stored files, to the stored files, to the stored files and programs, provide authentication and security to the stored files and program. Next point, transfer data reliably, transfer data reliably and efficiently, transfer data reliably and efficiently. Transfer data reliably and efficiently. ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेलनेट, गोफर, ये सब। इसके लिए सर प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिकेशन मतलब सही से अपलोड हो रहा है या नहीं, गलत तो नहीं हो रहा है कुछ, इसको चेक करने को ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। रोल नंबर 1।